guys, very welcome to my channel. After so long I'm recording this video and I'm so excited. पता नहीं क्यों बड़ी खुशी हो रही है मुझको ये व्लॉग वीडियो बना के. काफ़ी दिनों बाद मैं ऐसे बैठ के कैमरे से बात करते आपसे कनेक्ट होते हुए वीडियो बना रही हूँ. तो वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है. खाने पीने को लेके बैठ सकते हो या तो, और ये भी हो सकता है कि मैं अपनी चक्कर चक्कर पकड़ करूँ. अगर आपको मेरी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चक्कर चक्कर पकड़ कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए नहीं है. बट आई नो देयर आर फ्यू ऑफ माई सब्सक्राइबर दैट आई लव फ्रॉम लाइक माई हार्ट that are interested in my well-being and my life. This video is for you guys. I'm gonna give my life update and gonna reply to questions that you asked on my Instagram. मैंने स्टोरी डाली थी इसके अंदर और आप लोगों ने कुछ सवाल पूछे हैं तो उनके भी जवाब मिलेंगे. So बिना और कोई देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो मैंने यहाँ पर मेरा फ़ोन ले लिया है. सबसे पहला जो सवाल सबसे ज़्यादा आया हुआ है वो यही आया हुआ है कि why you don't vlog much, why not vlogging, etc. So guys, just know that I had a baby in 23 sorry 2023 में I had a baby in February and now she is 18 month old. Okay, so उस मेरी पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में, इवन उससे पहले एंड इवन उसके बाद में, I was continuously making content until I burn out. Until that I think that कि जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ उस like the effort I was putting in and the amount of effort I was receiving from the people, तो मुझे ऐसा लगा कि this is not for me, vlogging is not for me. क्योंकि यार मैं बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है vlog करने के अंदर and you have to get some views. और या फिर like suppose करो कि आप जॉब पे जा रहे हो and you're not getting the salary for it, you're not getting the appreciation for it, you're not getting the promotion for it, तो you will think यार मैं सच में is the line worth it or not. तो सही बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अपनी जितनी भी एनर्जी है वो कहीं और फोकस करनी चाहिए instead of focusing on that this career. ठीक है, but the problem is that I really love vlogging. ठीक है, I'm really passionate about it, but I'm not getting anywhere. Like I know that I have a subscriber base, which I'm grateful for, but I don't have the views base. I'm gonna be really honest and not getting enough views, make enough money to survive or depend on it. Okay, I know there are so many YouTubers who are doing it, but I also know people or YouTubers or influencers are not making as much money as the other influencers are making, and I am one of them. So that's why I was not enough motivated to make vlogs. Simple बात, सीधी बात, no बकवास. ठीक है, तो that's why I stopped vlogging. And दूसरी बात ये भी है कि when I had Arisha, पहला रीज़न तो ये हो गया that no monetary benefit, no views benefit and no promotion. like ना मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना मेरे व्यूज, even though I am getting love and support from you guys, but in the long term we also need as a human being some kind of reward back. ठीक है, तो that's why I stopped vlogging and I was vlogging इतना जितना मेरा मन कर रहा था. I was not pushing myself so hard. Why? Because let me tell you that. So with Arisha, with my first child that came in my life in 2018, तो उसके आने के बाद में I had a postpartum depression which is no one talks about, and जब तक मुझे realize हुआ था तब तक so into it. I healed from it, I get better and everything, and then I had my second child. I thought, oh, I can do it again, and I tried my best. Okay, I take care of myself and everything, and but still, okay, it affects you. And I was on medication for a while, and I realized कि medication तो और भाई वो और बेकार है. तो that was it. I was suffering from this. तो मेरे को अपनी battle choose करनी थी. The battle is to take care of my mental health or my child, because child and mental health is not optional, है ना. And another thing is I was focusing on my career, which I was focusing on full time YouTube and vlogging, जिसमें मुझे कोई इतना success मिल नहीं रही थी, but I really liked it. और my kid and me, so I choose me, and I'm happy about it. बीच में ऐसा हुआ था इन लास्ट सितंबर, एग्जैक्टली एक साल पहले ऐसा हुआ था कि मैंने सोचा कि लेट्स गो टू इंडिया एंड देन वी कैन, बिकॉज वी हैव फैमिली एंड सपोर्ट देयर, माई मदर एंड माई सिस्टर आर देयर, सो आई विल गेट द सपोर्ट फ्रॉम देम टू हेल्प मी रिकवर फ्रॉम माई मेंटल हेल्थ. ऑल्सो आई विल गेट हेल्प विद किड्स एंड आई कैन ऑल्सो फोकस ऑन माई करियर. सो आई थॉट दैट विन विन विन, बट दैट डिडंट हैपन बिकॉज कितनी भी आपको हेल्प मिल जाए, कितना भी कुछ मिल जाए, यू स्टिल हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ मेंटली. खुद ही कर सकते हो, मतलब कोई और आके नहीं करेगा. एंड
बच्चों की भी अगर बात करें तो नो वन कैन रिप्लेस द मदर, ओके. सो आई वॉज ब्रेस्ट फीडिंग हर एंड इट वॉज इम्पॉसिबल. मुझे लगा था कि आई कैन डू इट, बट नहीं, मुझसे बच्चा मेरा छोड़ के काम नहीं होता था, बहुत मुश्किल से होता था. तो इसलिए वो भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि आई यूज टू फील सच गिल्ट फॉर लिविंग हर. मैंने 1 या 2 ही शूट करे थे आउटडोर्स, और उसके अंदर भी मैं इसको छोड़ के गई थी 4-5 घंटे के लिए, बिकॉज यू नो ट्रैफिक वगैरह संभलाने में 4-5 घंटे लग जाते थे मुझे एक कोई प्रॉपर शूट करने में. एंड आफ्टर दैट आई वॉज इन सो मच गिल्ट कि भाई मैं अपना बच्चा छोड़ के जा रही हूँ. तो फिर मैंने ना बहुत ज़्यादा फोकस करना उस पर छोड़ दिया. नाउ माई किड्स नीड मी एंड ठीक है, आई विल फोकस ऑन देम ओनली. हैड सो मेनी आइडियाज एंड स्टिल हैव सो मेनी आइडियाज. आई वांट टू डू आई वांट टू मेक सच कंटेंट, सो मेनी कंटेंट, बट आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज राइट नाउ एंड इट्स अ फेज. ओके, द किड्स विल ग्रो अप एंड आई विल बी विद माई सेल्फ forever. So that's why I don't want to like ruin this memories of them, like छोटे बच्चों वाली. I really wanted to enjoy the newborn and the toddlerhood phase. I didn't enjoy with my firstborn because I was depressed. All right, let's move to the next question. I hope कि आपको आंसर मिल गया होगा कि why I'm not vlogging. I didn't vlog much and in the future also ना मेरे कुछ कमिट नहीं कर रही हूँ कि मैं कितना vlog करूँगी या कितना क्या नहीं करूँगी. I will only vlog जब मुझे मेरे बच्चों से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से में कोई भी तरीके की बाधा नहीं आ रही हो, और या फिर मैं मेंटली रियली वॉन्ट टू डू, लाइक आई एम रेडी हेयर. नॉट बिकॉज कि ओह बिकॉज आई हैव टू, नो, बिकॉज आई वॉन्ट टू. ओके, सो दैट्स आई वाज नॉट व्लॉगिंग मच. और यार थोड़ा व्यूज़ वगैरह अगर आप अच्छे से करते हो, सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ते हैं अच्छे से, तो यार ठीक है, पैसे वैसे आते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है. पर ऐसे कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो ऐसे खैर. There was a time, okay, I was doing so much good in my YouTube and then मेरे को नज़र लग गई. Send good vibes guys, send good vibes. वीडियो को बीच में रोकने के लिए I'm really sorry guys, मगर I want to share this amazing new product from Mamaearth, which is this amazing lipsticks with avocado oil and vitamin E. As you guys know कि फेस्टिवल सीज़न आने ही वाला है, ऑलमोस्ट आ ही गया है. गरबा सीज़न, देन करवा चौथ, उसके बाद में दुर्गा पूजा, दिवाली, दशहरा. ओ माय गॉड, सो मेनी थिंग्स आर कमिंग अप. सो मैंने सोचा कि आपको ये नई लिपस्टिक्स इंट्रोड्यूस करती हूँ जो कि आपको फेस्टिवल सीज़न के अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाली है. वाई? क्योंकि ये पूरे 12 घंटे तक टिकती है, स्मज भी नहीं होती है, और साथ ही साथ में इसके अंदर एवोकाडो ऑयल और विटामिन ई है जो कि मेरा फेवरेट है, बिकॉज इससे लिप्स मॉइस्चराइज रहते हैं और ड्राई नहीं होते हैं, और साथ ही साथ में सेफ़ भी है और आप एवरीडे भी इसको यूज़ कर सकते हो. एंड यू गाइस, Mamaearth listens, they continuously enhance products through your feedback and research. So share your thoughts to help them improve नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर. मुझे लिपस्टिक्स पर्सनली काफ़ी पसंद आई क्योंकि ये मैट भी है मगर लिप्स पे मॉइस्चराइज रखती है, और साथ साथ में लंबे समय तक टिकी भी रहती है. और साथ ही में इनका एक और नया प्रोडक्ट भी मेरे को रिसीव हुआ था, विच इज़ दिस Mamaearth का काजल. ये बिल्कुल स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, और बिल्कुल अपनी जगह से हिलता नहीं है. रियली लव दिस काजल. अगर आप डेली पहनते हैं तो आप एक बार ये काजल ट्राई करके देख सकते हैं. एज यू कैन सी कि आई ट्राइड इट हेयर एंड इट्स बिल्कुल वाटर प्रूफ एंड बिल्कुल स्मज प्रूफ है. बट लेट्स टॉक अबाउट लिपस्टिक्स मोर. आई रियली लव दिस लिपस्टिक्स बिकॉज गाइज इसकी कलर जो है बहुत ही ज़्यादा एज यू कैन सी वाइब्रेंट है, और साथ साथ में मुझे इसका जो एक लिप शेड है जिसका नाम है कार्नेशन न्यूड, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. और अगर आप भी इसको बाय करना चाहते हो तो एज यू गाइस नो कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, नायका और पर्पल के ऊपर तो ये अवेलेबल है ही है. साथ ही में आपकी जो नियर बाई स्टोर है उसके ऊपर भी आपको आराम से मिल जाएगा. स्क्रीन के ऊपर मेरा कोड दिख रहा होगा पूनम 2024, जिससे कि आपको 20% ऑफ मिल सकता है Mamaearth की वेबसाइट या फिर ऐप के ऊपर. सो डोंट फॉरगेट टू ट्राई दिस प्रोडक्ट. All right. The next question है, are you from Piprali? Yes guys, I belong from Piprali, not the big one, not the sicker one, but जो छोटा सा एक गांव है लूणवा के पास में, वहाँ से मैं हूँ. मैं वहीं पैदा हुई हूँ and I'm really proud of it. I have 2 से 3 क्वेश्चन है. दैट टीजा पोस्टमार्टम डिप्रेशन में से बाहर कैसे आए आप? एंड आई हैव सच अ सिचुएशन, गुस्सा, खुशी एंड क्राई. एंड देन देयर इज अ सेकंड पर्सन who was telling me that postpartum depression sometimes wants to. Okay, Isha was here. She wants to become YouTuber now. She said that I want to become a YouTuber when I'll grow up. सोचो, ठीक है, मतलब बड़े होके बनना यार, अभी थोड़ा सा सेफ रहो. ओके, तो सेकंड क्वेश्चन आई वाज रीडिंग कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन समटाइम्स वांट्स टू किल माई सेल्फ. कभी ऐसा लगता है सभी को छोड़ के चले जाऊँ. गाइस, योर सिचुएशन इज सो बैड राइट. दिस इज I have no words, okay? And there are so many other question about postpartum depression. मतलब कोई बात ही नहीं करता इसके बारे में. postpartum depression के बारे में कोई, मतलब I'm not talking about foreign vloggers, I'm talking about Indian vlogger ना, कोई इतना ज़्यादा बात नहीं करता है कि बनी क्यों रहा है.
ये नहीं सोच रहे कि वाई women आर गोइंग इन डिप्रेशन एंड वाई, पता है क्यों? मुझे जितना लगता है ये सब ना सोसाइटी की गड़बड़ है भाई। सोसाइटी इतनी एक्सपेक्टेशंस रखती है ना माओ से, इतनी ज़्यादा। मतलब कल तक वो लड़की ना लड़की है और आज अचानक से वो माँ बन गई, तो उसको सब कुछ आ जाना चाहिए। फर्स्ट ईयर के अंदर उसको सब पता होना चाहिए कि बच्चा कैसे रखना है। इतनी सी भी गलती करती ना तो शी इज़ अ बैड मदर, ठीक है? तो दैट्स वाई मुझे लग रहा है अपने इंडिया के अंदर ना नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट एंड इट्स वेरी कॉमन बिकॉज द मदर शेमिंग इज सो रियल। मैं आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे को इतना नहीं फेस करना पड़ा बिकॉज आई हैव अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम। हाँ, मेरी मम्मी ना ऐसे आगे खड़ी रहती है मेरे उसके आगे, बट एंड आई ऑल्सो, मैं यहाँ पे रहती हूँ ना तो मैंने इतना प्रोटेक्शन खुद के आसपास में देखा है कि मैं अपने आप को अवॉइड करती हूँ। बट इंटरनेट से जितनी हेट आती है, इंटरनेट से जितनी आती है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई इंडिया के अंदर क्या हाल होते हैं। चलो कि आपने दूध नहीं पिलाया तो उसकी शेम, आप डायपर यूज़ कर रहे हो तो उसकी शेम, नहीं यूज़ कर रहे हो तो उसकी शेम, कुछ भी कर लो, मतलब आपको बैंड बजानी है। तो भाई जो भी माएँ इस फेज से गुजर रही है ना, मुझे समझ में आ रहा है कि वॉट यू आर गोइंग थ्रू, ठीक है? आई कैन रिलेट टू यू एंड आई अंडरस्टैंड दैट इट इज पेनफुल, ओके? इट्स नॉट कि हाँ भाई लोग ऐसे बोल रहे हैं हाँ तो क्या हो गया भाई, तेरे को तो खुश रहना चाहिए, तो यू हैड जस्ट हैड अ चाइल्ड, यू शुड बी हैप्पी। अरे नहीं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू बी हैप्पी, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू फील वॉट यू आर फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर फीलिंग सैड, बी सैड। नो, कोई आके बोल रहा है अरे यार हंसो ना, मुस्कुरा, नहीं हंसना है भाई, नहीं मुस्कुराना है। फील योर इमोशंस, लिख लो उस इमोशन को, बहुत ही अच्छा होता है। लिख देते हैं ना अपने अपने इमोशंस को तो निकल जाता है अपनी बॉडी के अंदर से। नहीं लिखते हैं ना तो यहाँ अटक जाता है या कहीं और अटक जाता है, फिर वो पेन बन जाता है, ठीक है? तो अगर अपने, इफ़ यू लव योर सेल्फ इनफ देन राइट इट डाउन। इफ यू डोंट लव योर सेल्फ, टॉक टू समवन, टॉक टू योर सिस्टर हु इज नॉट जजिंग यू बाय द वे। सो थेरेपी तो अपने यहाँ पे कॉमन है ही नहीं, थेरेपी की तो बात ही छोड़ो, और बहुत महंगी भी होती है, तो मैं उसको सजेस्ट ही नहीं कर सकती। अगर आपके पास पैसे हैं ना, प्लीज़ गेट इट, बहुत सही है। इट्स लाइक कि दवाई लेना, तो सही है। पर अगर आप बात करें कि आप खुद कर सकते हो, तो यार टॉक टू समवन जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, जिसको आपको पता है कि मेरे को जज नहीं करेंगे, ठीक है? और नहीं है ना, कोई भी नहीं मिल रहा है कि यार कोई नहीं समझ रहा है मेरी प्रॉब्लम, तो राइट इट डाउन। वो लॉक वाली डायरी होती है ना, वो खरीद लो। और वो भी नहीं होता है ना, तो वो जो एक स्पाइरल वाली जो नोटबुक आती है उस पर लिखो, उसको पेज को फाड़ के जला दो। जस्ट राइट इट डाउन योर ऑनेस्ट फीलिंग्स, बिकॉज आई अंडरस्टैंड हाउ इट फील्स टू बी ट्रैप्ड बाय योर इमोशंस, ठीक है? जब आपको कोई नहीं समझ रहा है। और हस्बैंड्स की तो बात ही मत करो, दे डोंट अंडरस्टैंड। मैंने कितनी औरतों से बात करी है ना, किसी के भी हस्बैंड एक दूसरे उनकी वाइफ को नहीं समझ पाते हैं। एंड तो लेट्स नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम एंड लेट्स जस्ट फिगर इट आउट हिमसेल्फ। नो प्रिंसेस इज गोना सेव यू, ओके? प्रिंसेसेस, यू आर गोना सेव योर सेल्फ। तो सेव योर सेल्फ, ओके? कोई राजकुमार नहीं आएगा घोड़ी पर सवार होके। और देयर आर सो मेनी टिप्स, ओके? So many things that I can talk about. If you want more about it, let me know. I want to talk about it. बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है? Then someone sent me lots of love. I love you too. Then है, अगर शादी से पहले कोई सर्जरी या ऑपरेशन हो जाए तो क्या डिलीवरी नॉर्मल होगी, सी सेक्शन होगा? ब्रो आई डोंट नो, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, ओके? गो टॉक टू योर डॉक्टर, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई फर्क पड़ता है डिलीवरी वगैरह। सो मच हेयर फॉल, प्लीज शेयर योर हेयर केयर रूटीन। अच्छा, मुझे हेयर फॉल के रिगार्डिंग ना बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं एंड कमाल की बात ये है ना कि मैंने बहुत वीडियोस बना रखी है इसके ऊपर। तो इफ़ यू आर लाइक रियली वरीड अबाउट इट, यू रियली वांट टू डू मेहनत एंड ऑल दैट, तो यार चेक करो यूट्यूब मेरा जाके ना, पूरी प्लेलिस्ट है हेयर केयर के ऊपर। एंड इफ़ यू डोंट, मैं सिंपल सी बात बताती हूँ, मैंने ना मेहनत करनी छोड़ दी आफ्टर हैविंग किड्स। मैंने इवन हेयर कट भी करवा लिया बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है गुड क्वालिटी शैम्पू एंड कंडीशनर रियली हेल्प्स। पहली बात तो हेयर ऑयलिंग हेल्प्स, जेनेटिक्स हेल्प्स, सिंपल, नथिंग। Go watch that video and if you want upgraded video कि how I take care of my skin and my health, तो बताना मुझे कमेंट में, बना देंगे वापस से, ठीक है? How you do threading in Italy, guys? I epilate my forehead and my upper lip, then with the plucker I pluck the remaining hair, और उसकी मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, चेक कर सकते हो। पूनम राठौर आईब्रोज लिख देना, आ जाएगी। और मैंने यहाँ की पार्लर में भी जाके बात की थी, उन्होंने भी बोला प्लकिंग से ही करते हैं हम भी, हम वो थ्रेड नहीं यूज़ करते हैं। मैंने कहा मैं कर लूँगी, फिर क्यों मैं आपको भी ज़ीरो दूँ, मैं कर लूँगी। सो दैट्स व्हाट आई डू। इंडिया आने का क्या प्लान है जीजा? कोई प्लान नहीं है अभी, बिकॉज मैं अभी आई हूँ और भाई इंडिया आना जाना इतना महंगा पड़ जाता है, लेट मी बी ऑनेस्ट। तो अभी तो कोई प्लान नहीं है, जब बहुत पैसा आएगा जब थोड़ी सेविंग करके फिर जाएंगे आराम से। दीदी आप मिनी ब्लॉग डेली ब्लॉग डाला करो, मेरे को आपकी आवाज़ बहुत पसंद बट है ना यार, मिनी ब्लॉग डेली ब्लॉग मैंने ट्राई करे हैं, उसके अंदर उतना ही एफर्ट जाता है जितना बड़े वाले में, क्योंकि आपको ट्राइपॉड और कैमरा लेके सब जगह घूमना पड़ता है।
और फिर उसके बाद में या बट आई ट्राई, आई कांट से एनीथिंग। मेरे को अच्छा लगता है पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लाइक स्पेशली जब 2 बच्चे होते हैं उनके साथ में भाग रहे होते हैं ना इधर से उधर इधर से उधर, तो उस टाइम पे कैमरे की नहीं सूझती है। उस टाइम ये देखते हैं कि एक बच्चा इधर लटका हुआ है, एक बच्चा उधर लटका हुआ है, इनको खिला के पिला के इनको स्कूल छोड़ के आना है टाइम पे। वो भी स्टोरी के अंदर है ना थोड़ी इंग्लिश में बोली थी, अभी पूरी वीडियो के अंदर भी आपको लग सकता है कि मैंने इंग्लिश में बात करी, पता है मुझे ना पता नहीं चलता कि मैं कब इंग्लिश बोल रही हूँ कब हिंदी बोल रही हूँ, ऐसे फ्लो में बोल जाती हूँ। तो मेरे को 2-3 कमेंट आए हैं कि यार हिंदी में क्यों बात करते हो और हिंदी में व्लॉग बनाया करो ना यार, हिंदी नहीं आती क्या? नहीं आती भाई, अनफॉलो कर दो। बुरा लग रहा है बोलते हुए बट भाई सिंपल सी बात है, आई कांट प्लीज एवरीवन, आई कांट बिकम अ ऑल ओवर। इंग्लिश बोलूँगी तो बोलेंगे हिंदी नहीं आती है, हिंदी बोलती हूँ तो बोलते हैं गंवार है, कुछ भी बोलते हो यार तुम लोग। मैं ना सबको प्लीज कर ही नहीं सकती, मैं बन गई हूँ नो पीपल प्लीजर। तो आई एम व्हाट आई एम, इट इज व्हाट इट इज। How to change baby's routine? My baby is 5 months old and she awakes whole night. Bro, it's normal. Babies awake whole night. There is no formula. But जैसे यहाँ पे तो हम ऐसे करते हैं कि बच्चे को रात को नहला के फिर सुलाते हैं, तो कोई फॉर्मूला नहीं है उसका। बच्चे मन के कच्चे अपने आप सोते हैं, अपने आप करते हैं सब कुछ, can't do anything about it. बस लाइट वाइट बंद करके रखो, जब मर्जी होगी तो हो जाएगा। लाइट बंद रखना इज द बिगेस्ट थिंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मेकअप रिलेटेड वीडियोस क्यों नहीं डालते हो? भाई मैंने जितनी मेकअप वीडियोस थी ना सब डाल दी, जितना मेरे को मेकअप पता था सब कर दिया। इवन नाउ आई ओनली डू दिस 5 स्टेप मेकअप, जिसके ऊपर भी मैंने 10 करोड़ वीडियोस बना दिया है। तो देयर इज नथिंग लेफ्ट इन मी। सारी मेरा जो ज्ञान है वो मैंने भर भर के अपने चैनल पे डाल दिया ऑलरेडी, तो कुछ नया ज्ञान बचा नहीं है। ट्रेंड में कुछ ज़्यादा हैवी मेकअप है नहीं, जब थे पहले, अब नहीं है। क्वेश्चन फॉर यू जीजा, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर आस्किंग मी। पूरा मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे को फॉलोअर्स पूछते हैं हाउ आर यू। आई एम नॉट गुड बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कीप माई सेल्फ हैप्पी। ओके, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट because I love myself. If I will not take care of me, then who will? So I'm trying. But thank you for asking. इंडिया कब सेटल हो रहे हो और सिया का फेस रिवील कब करोगे? अच्छा, तो आफ्टर लिविंग 6 months इन इंडिया रियलाइज कि माई किड्स डोंट रियली लाइक इंडिया, स्पेशली एरिशा, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम इज सो हार्श एंड yeah, so that's why I don't think so I'll shift to India again, because after comparing those education system I realized that it's good for my kids to stay here. और जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे then I'll shift to India. अभी मैं कुछ कमिट नहीं कर सकती, पर ये कमिट नहीं है ना, मैं सिर्फ ऐसे बकवास कर रही हूँ। कल को पता चला कोई मजबूरी आ गई, मुझे शिफ्ट होना पड़ गया तो, बट फॉर नाउ दिस इज द प्लान। और बाद में भाई पता नहीं, मैं तो कुछ कह नहीं सकती इंटरनेट पे, मैं कुछ कहती हूँ और उसका उल्टा हो जाता है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगी। बट दिस इज द सीन राइट नाउ, सब कुछ कह के भी बोलते कुछ नहीं कहूँगी, हद हो गई। ओके, ये मस्त क्वेश्चन है। आपकी भी मेरी तरह 2 बेटी है, तो ऐसे में एक कर लो बेटा होगा कि एडवाइस देने वाला का जवाब? जो भी आपको ऐसे बोले ना कि अरे 2 बेटियां हो गई, एक और बेटा कर लो, उनको ऐसे बोलो कि जो तीसरा बच्चा होगा ना उसके जो भी बिल्स बनेंगे ना हॉस्पिटल के, उसके कपड़े वपड़ों के, आपके घर भिजवाऊंगी सीधा। उनको पालने का खर्चा आप उठाते हो तो बोलो, तो मैं तीसरा करने को रेडी हूँ। और मेरी भी जो ना मेंटल हेल्थ की होगी तो उसके थेरेपी के पैसे, मेरी फिजिकल हेल्थ के पैसे सब उठाते हो तो बोलो, ये बोल लो सीधा। बिकॉज सीरियसली मैं भी इंडिया गई थी, मुझे इतने आशीर्वाद मिले ना बेटे होने के, भाई मैं एम सो डन, मैं हो गया। मेरे पोस्टमार्टम में मेरे किसी भी चीज के अंदर कहीं से कोई सपोर्ट नहीं था, कोई हेल्प नहीं थी। एंड they have this himmat to say that to me, that have a 3rd child. Bro, you did not come at my 2 kids japa, okay? So don't say anything to me. I'm not gonna have any more kids. Never say never, but no. ऐसे बोलता है ना तीसरा बेटा कर लो, एक चिमड़ा लगाया करो कि बेटा कर लो। कौन से निहाल कर रहे हैं बेटे यहाँ पे? मुझे कोई बेटा नहीं देखा मैंने अभी तक जो निहाल कर रहा हो अपने बच्चों को। श्रवण कुमार बनाओ ऐसे डाल के टोकरी में किधर लेके जा रहा हो, जैसे कोई नहीं करता निहाल। मुझे नहीं चाहिए बेटा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, तो मेरे एक रियली स्कूल फ्रेंड ने पूछा है कि हाउ टू हैंडल सच सिचुएशंस, ही इज अ बॉय बाय द वे, गेटिंग आइडियाज फॉर माय फ्यूचर वाइफ, उसको दिक्कत नहीं आने देंगे। प्रो ऐसे सोचना सभी लड़कों की हो जाए ना कि भाई मैं अपनी वाइफ को दिक्कत नहीं आने दूंगा, तो मजा आ जाएगा सबसे, पता है। बट ये भी ना डिपेंड करता है, टेकिंग केयर ऑफ योर वाइफ आफ्टर पोस्टमार्टम कैन बी हार्ड फॉर यू, इट कैन बी ईजी फॉर यू, इट डिपेंड्स ऑन योर बिलीव्स कि भाई आपको एज अ मैन how much respect you give to a woman all over. So it depends on you. I think
if you want to start now, what are the things that are unfair to women, and start from there. And when those unfair things will be happening to your wife, then you will realize कि अच्छा, this is not normal and I should stand up for it. अच्छा, प्रॉब्लम इसमें क्या है ना कि when you stand up for it तो it's hard for you because तुम्हें वो काम करना पड़ रहा है. For example, कि रात को पूरी रात जगना ना is not easy, but your wife is doing. समझ रहे हो? एंड यू विल चूज ना, क्योंकि सब पूरी दुनिया आपको बोल रही है कि नहीं नहीं, इट्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, शी विल वेक अप, तुम्हें तो सुबह उठ के काम पे जाना है, इवन दो कि चाहे संडे हो नेक्स्ट डे. बट नहीं नहीं, तो तुम ऐसे सोचोगे हाँ ठीक है ना यार, मेरे को तो सोने को मिल रहा है, वाई विल आई चूज हर. बट इफ यू लव हर and if you really want to help her, not going in that rut, then you should take that stand and like, ठीक है bro, you sleep today, I will take care of the kid today, ठीक है, I will change the diapers, it's okay, she can live with me. And if you suppose करो कि कोई पार्टी या कहीं पे भी आपकी वाइफ को बाहर जाना है या फिर कहीं पे भी, this message is for every man who is watching this and really want to improve. तो I will say कि जैसे for example कि अच्छा ठीक है तुम्हें बाहर जाना है आज, कोई बात नहीं, आई टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, इट्स ओके, दिस चाइल्ड इज अपना दोनों का है. मैं कितने सारे आदमियों को ऐसे जानती हूँ जो बोलते हैं नहीं यार मेरे पास तो रुकेगी नहीं. अरे ट्राई तो करो, रुकेगी कैसे नहीं, तुम्हारा बच्चा है भाई, तुम्हारे पास ही नहीं रुक रहा है, माँ को कैसे रुक गया वो. समझ रहे हो? पहले दिन मतलब जब माँ बनती है पहली बार तो उसको अचानक से थोड़ी आ जाता है, वो भी प्रैक्टिस करती है तब जाके वो माँ बनती है. उसको थोड़ी पता है, पैदा होती है थोड़ी सिखा दिया था उसको कि भाई नहीं ऐसे ऐसे पेरेंटिंग करते हैं. नहीं, हम औरतें भी तो सीखती है ना, तो माँ सीखती है तो बाप भी सीख सकता है. ठीक है, तो पुट दैट एफर्ट. आई अंडरस्टैंड, पुट योर कंफर्ट बिफोर आफ्टर योर वाइफ, पुट योर कंफर्ट आफ्टर योर वाइफ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, तो इफ यू विल डू दैट bro, you can save your wife from that. She'll be happy and she'll love you more than you think. Women multiply the love you give to them. Seriously, they do. All alone taking care of kids and so far from family, how do you manage your own mental and physical health? देखो, there is no option. कोई ऑप्शन नहीं है. You have to take care and after थोड़े टाइम के बाद में you understand कि this is how it works. तो फिर आप उसको सीख जाते हो, है ना. तो जब कोई ऑप्शन नहीं होता तो आपको करना ही पड़ता है. और इसका जवाब और कोई जवाब नहीं है मेरे पास. आपने डिप्रेशन से ओवरकम कैसे किया? अच्छा, डिप्रेशन से ओवरकम मेरे को भी नहीं पता मैंने कैसे किया सीरियसली बताऊँ तो. बट मुझे लगता है मेरी सिस्टर ने और मेरी मम्मी ने बहुत हेल्प करी थी जब मैं बहुत ज़्यादा पीक पे थी. दे रियली सपोर्टेड मी थ्रू आउट एंड थेरेपी हेल्प्ड. एंड बट द प्रॉब्लम इज़ कि डिप्रेशन इज़ नॉट लाइक सैडनेस और समथिंग. इट्स लाइक दैट भाई हमको तो हो गया, मेरा तो भाई नहीं हो पाएगा. और इट्स लाइक दैट. तो हैविंग and my daughter, the first born Arisha, I'll give the full credit to her because she was the reason that I wanted to live. And this is such personal thing that I'm not really even comfortable to talk here because यार लोग बहुत जज करते हैं और आप किसी टॉपिक को लेके बहुत सेंसिटिव होते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है यार लोग कुछ ना कुछ बोल देंगे इसके बारे में, फिर आपको ज़्यादा ऑफेंड होते हो. लाइक ट्राई माई सेल्फ नॉट टू बी ऑफेंडेड बाई पीपल्स ओपिनियन, बट स्टिल ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है दैट सो पर्सनल टू यू एंड यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज you're not ready to be feel judged on this sensitive topic. ठीक है, तो I don't know if I'm healed. I don't know if I already overcome it or not, but I think it's a process and the working on myself, like taking care of myself and realizing कि bro you can do it, that's the important thing. ठीक है, तो I have no answer for it but I'm trying. About mommy pouch, इतना टमी क्यों रह जाता है? How can we lose our weight? I think you should be kind to yourself in the first 2 years because 2 क्या 3 साल तक, क्योंकि बॉडी नॉर्मल ही नहीं होती है. उसके बाद में विल फोकस ऑन द फिजिकल हेल्थ ना. पहले मेंटली और बच्चे के ऊपर इनके ऊपर फोकस कर ले, फिर अपने बॉडी के ऊपर फोकस करेंगे. और आपके पास फिर भी टाइम है तो आई थिंक यू शुड सिंपली स्टार्ट एक्सरसाइजिंग. दैट्स द ओनली ट्रिप. I am trying exercising but I'm not doing the high intensity one, I'm doing the very low intensity one. And I will not say I'm very regular but I try my best to do it. But again your priorities are different. If you really want to lose the weight you will find a way. There are so many, and obviously focusing on nutrition and proteins and everything वो भी बहुत important करता है. But I think वो भी प्यार आप खुद को कितना करते हैं ना उसके ऊपर डिपेंड करता है. हम माएँ ना अपने बच्चों को ज़्यादा प्यार करते हैं खुद से, तो हम उनकी तो हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उनको तो क्या प्रोटीन और क्या न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं उनका तो ध्यान रखते हैं, खुद का नहीं रखते हैं. तो आई एम टेकिंग केयर ऑफ दैट and I am making myself healthy breakfast and everything healthy. So if you can exercise.
दैट्स इट. और भाई बॉडी इतना मेहनत करती है बच्चा बनाना है सब कुछ. जस्ट बी काइंड टू योर सेल्फ एंड बी नाइस टू योर सेल्फ. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. Okay, then last question I'm gonna take is I'm dating a Rajput boy. What should I do to impress him? Yes, I'm not Rajput. I will say that don't waste your time. Simple. कोई explanation नहीं. वैसे I already talked to this girl. If you are someone who is already in this situation, I will say that just don't waste your time. Don't waste your time. Simple. समझदार को इशारा काफी है. Okay, bye. Alright, तो यही पे खत्म होती है हमारी आज की वीडियो. I hope that you like this video. If yes, then don't forget to like, share and subscribe वगैरह. It's not really important to feel right now. It is, but not that much. What is important is right now comment below. मुझे पता लगना चाहिए कि लोग देख रहे हैं क्या. So please, your comments are really important for me here. So do comment and likes तो करना ही करना है, मतलब तो स्टोन होता है. और अगर शेयर कर सको उन लोगों को जिनको आपको लगता है कि हाँ भाई इनको समझ में आ रहा है what I'm talking about, if they should watch my channel. and अगर आपको लग रहा है कि इस टॉपिक में से किसी कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसके ऊपर मुझे और बात करनी चाहिए, then also comment below because I would love to make more awareness videos about this topic that are not talked about. and what questions you have for my next video वो भी नीचे description box में, sorry नीचे comment section के अंदर, so that I'll make more videos on it. मुझे बड़ा मजा आया ये शूट करके. आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा देख के. तो मैं यही खत्म करती हूँ वीडियो. बाय. Like, share and subscribe to my channel.